مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خدمت گزار کاوش جہانگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، خداوند کا خوبصورت کلام لیے ہوئے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے نجات کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں کس وسیلہ سے نجات ہے، نجات کا ذریعہ کیا ہے، دروازہ کون ہے جس دروازے سے ہم نجات کو پا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے یوئیل کی کتاب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ بائبل کھول کر دیکھنا چاہیں تو یوئیل 2 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کون سے خداوند کا نام لیا جائے، کیونکہ اسرائیل میں یا اسرائیل کے چوگرد جو اور قومیں تھیں اس وقت، جب یروشلم میں جب اسرائیلی لوگ یا یہودی جب وہاں پر رہتے تھے کنعان میں، تو اس جگہ پر اور جو قومیں تھیں وہ بھی رہتی تھیں اور ان کے بھی خدا تھے، لیکن وہ طرح طرح کے خدا تھے۔ کچھ معبود تھے اور کچھ اس طرح کے ہی بت تھے جن کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے۔ لیکن ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ یوئیل نبی جو اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے وہ صرف وہاں خدا کا نام لیتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس خدا کا نام کیا ہے، وہ کون سا خدا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوکا 2 باب اس کے 21 تا 30 آیت پڑھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کس نجات دہندے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے حوالہ لوکا اس کا 2 باب اور اس کی 32 آیت۔ سے لے کر اس کی 2 باب 21 سے 30 آیت تک۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختمہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ آمین۔ یہ جب یسوع مسیح 8 دن کے ہوئے اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ جب یسوع مسیح کو لے کر ہیکل میں گئے مخصوصیت کے لیے، ان کو برکت دلانے کے لیے، تو وہاں جو شمعون نامی شخص تھا، جو کاہن تھا، جو خادم تھا اس خدا کا،
उसने जब यीशु को देखा, क्योंकि उसके बारे में ये नबूवतें हुई थी, ये कहा गया था कि जब तक तू नजात दहिंदा को ना देख ले, जब तक तू मसीह को ना देख ले, तब तक तू ना मरेगा। और इस हवाला में जब देखते हैं हम आखिरी 20वीं आयत, तो यही लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली। यानी कि यीशु मसीह ही निजात है, यीशु मसीह के ज़रिया से, वसीला से ही नजात है, यीशु के नाम में ही नजात है। इसीलिए उस शख्स ने, शमौन नामी शख्स ने ये बात कही, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। इसी तरह बाइबल में हमें और भी बहुत से रेफरेंस मिलते हैं जिनसे ये साबित होता है कि यीशु मसीह ही हमारी नजात का ज़रिया और हमारा दरवाज़ा है। अगर यूहन्ना 10 बाब उसकी 9 आयत में देखें तो इसी तरह वहाँ भी हमें इस बात का पता चलता है कि यीशु मसीह ही वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से हम नजात पा सकते हैं। 10 बाब यूहन्ना उसकी 7 से लेके 9 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अगर कोई देखना चाहे तो वो देख भी सकता है। फिर यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इस आयत में भी हम देखें तो नजात का जो दरवाज़ा है, नजात का जो रास्ता है, ज़रिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह है। अगर हम उस पर ईमान लाते हैं, अगर यीशु मसीह के जो सिखाए हुए हुक्म हैं उन पर चलते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो ही हम नजात को पाते हैं। वरना किसी भी और नाम में इतनी ताकत नहीं कि जो हमें हमारे गुनाहों से नजात दे। ना कि गुनाहों से, बल्कि जब हम यीशु के नाम में नजात पाते हैं तो हमने जैसे बाइबल में देखा है, शागिर्दों में भी देखा कि उन्होंने यीशु के नाम से बड़े बड़े मोजज़े किए, बड़े बड़े लोगों को शिफाएं दी, लंगड़ों को अच्छा किया, और इसी तरह बहुत सी बीमारियां भी लोगों से दूर की। वो सब का सब उन्होंने यीशु नाम में ही किया। इसीलिए अगर आज हम भी यीशु नाम का ईमान रखते हैं, यीशु पर ईमान लाते हैं, तो हम नजात पाते हैं। एक और हवाला देखें मेरे साथ, अमाल यूहन्ना का ही है, 12 बाब उसकी 47 आयत। यूहन्ना 12 बाब उसकी 47 आयत। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, 47 इसकी 47 में देखें, अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। मतलब अगर यीशु मसीह ने जो हमें ये सारी बातें नजात के हवाले से बताई, अगर तो हम उन पर ईमान लाते हैं, अमल करते हैं, तो मुजरिम नहीं ठहराए जाते। लेकिन अगर हम ईमान नहीं लाते, यीशु को निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, यीशु के ज़रिए से निजात पाने को, इस ज़रिए को कबूल नहीं करते, तो फिर ये कलाम ही जो है हमें मुजरिम ठहराएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं मुजरिम ठहराने नहीं आया बल्कि नजात देने आया हूँ। इससे अगली आयत में इस तरह लिखा है, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा। तो यीशु मसीह हमें नजात देने आए, मुजरिम ठहराने नहीं आए। नजात का अमल, नजात का ज़रिया, वसीला यीशु मसीह खुद हैं। उन पर ईमान लाकर ही हमें नजात मिलती है। अमाल 4 बाब उसकी 10-12 आयत में भी देखें, हमें इस तरह हवाला मिलता है। अमाल 10 बाब उसकी 15 बाब और उसकी, एक मिनट, यूहन्ना के बाद अमाल 4 बाब 10-12 पहले हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम उससे अगली वाली आयत को देखेंगे। अब पहले अमाल 4 बाब और उसकी 10-12 आयत।
यहाँ लिखा है, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम ममारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाएं। ये उस वक्त का वाक़या है जब यीशु मसीह के शागिर्द हैकल के करीब से गुज़र रहे थे और वहाँ एक लंगड़ा था। उसने जब उनकी तरफ देखा तो उस वक्त शागिर्दों ने, पतरस ने उससे कहा कि देख, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं जो हम तुझे दे सकें, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे दिए देते हैं कि उठ और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वो उसी वक्त अच्छा हो गया और चलने फिरने लगा। और इस आयत में भी जब हम ये देखते हैं, गौर करते हैं, तो यहाँ भी पतरस यही बात कह रहा है कि इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। और आगे जाके जब इस आयत को देखें, आगे हम 12वीं आयत, तो उसमें साफ ये जाहिर है कि और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाएं। यानी कि यीशु मसीह नासरी के ही नाम से नजात है, यीशु मसीह के वसीला से ही नजात है, वही दरवाज़ा है, वही हमारा ज़रिया है। इससे आगे अगर अमाल 15 बाब उसकी 7 ta 11 आयत भी हम देखते हैं, तो यहाँ इस तरह से लिखा है, 15 बाब उसकी 7 ta 11, और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि ए भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी ज़ुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरह रूह कुद्स देकर उनकी गवाही दी, और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर, जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे, ना हम खुदा को क्यों आजमाते हो, हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यस्सु के फजल ही से नजात पाएंगे, उसी तरह हम भी पाएंगे। ये वाक़या अगर आप इससे पिछला ये पूरे चैप्टर को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब दूसरी कौमों में यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद दूसरी कौमों में जब पतरस और बहुत से शागिर्द जाकर मुनादियाँ करते थे, तो आपस में भी बुज़ुर्गों की इस बारे में काफ़ी बहसो मुबासा होता रहा कि वो नामख्तून हैं, तो हम वो किस तरह से निजात पा सकते हैं जब तक कि वो इसराइली कवानीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक पूरे नहीं उतरेंगे। लेकिन पतरस ने उनको इसी बात की यकीन दहानी कराई कि ईमान के वसीला से भी वो निजात पा सकते हैं, क्योंकि जब उनको रूह कुद्स मिला तो हमें ये बात वाज़े हो गई कि खुदा ने उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रखा। क्योंकि यहाँ आखिरी आयत में ये लिखा है कि हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यस्सु के फजल ही से निजात पाएंगे, उसी तरह हम भी पाएंगे। यानी कि गैर कौमें, गैर अक़वाम या गैर जो ईमान, जिनका ईमान यस्सु पर नहीं, ऐसे लोग भी अगर यस्सु की तरफ रजू लाते हैं, उसके फजल को कुछ समझते हैं, यीशु को ज़रिया समझते हैं, यीशु के फजल को ज़रिया समझते हैं, तो वो सब भी नजात पाएंगे। इससे आगे एक और आयत मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। रोमियो 10 बाब उसकी 9 ta 10 आयत, इस आखिरी आयत को हम देखेंगे और फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। रोमियो 10 बाब उसकी 8 ta 10, 9 ta 10 रोमियो 10 उसकी 9 ta 10। यहाँ लिखा है कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए
کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی صاف واضح ہے جب ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں کہ یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، یعنی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ جو یوئیل نبی کا ہم نے سب سے پہلے جو حوالہ ڈسکس کیا، جب ہم نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہے کہ خداوند کا نام لے تو نجات پائے گا، اور پھر ہم نے یہ سوال خود سے اٹھایا اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، اور اکثر ہمارے دلوں میں یہ سوال آتا بھی ہے کہ خدا کا نام لے تو نجات پائے گا، لیکن خدا کون سا خدا جس کا ہم نام لیں؟ اور اس آیت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرے، یعنی یسوع ہی خدا ہے، آپ یہ ایمان رکھیں گے، اگر اس بات پر آپ ایمان رکھ کے متفق ہوں گے اور اپنے دل سے ایمان لا کر آپ اقرار کریں گے زبان سے، تو نجات پائیں گے۔ کیونکہ اکثر اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جو ہم سب ہی خیر گناہ گار ہیں، بائبل میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن اگر انسان گناہ کر کے خدا کے آگے اس کا اقرار کرتا ہے، اگر اس کی معافی مانگتا ہے، اگر کہتا ہے کہ ہاں خداوند مجھ سے یہ کام غلط ہوا، یا مجھ سے یہ غلطی خطا، یا مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو مجھے معاف کر، تو خدا معاف کرتا ہے اور نجات دیتا ہے۔ کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ اگر تو منہ سے اقرار کرے تو، لیکن جب ہم منہ سے یا دل سے اقرار ہی نہیں کرتے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم منہ سے اقرار بھی کریں۔ تو میرے عزیزوں، آج ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے کہ ہمیں نجات پانی ہے، کس وسیلہ سے نجات پانی ہے، کس کے نام سے ہمیں نجات پانی ہے۔ ہم نے اپنا نجات دہندہ یسوع کو قبول کرنا ہے، تو ہی ہم جا کر نجات پائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔